एट नेट जियो, क्या कारण होता है कि इन प्लांट्स को इंसेक्ट या अदर स्मॉल यू कैन से इनवर्टिब्रेट्स को खाना पड़ता है? एनी स्पेसिफिक रीजन? Exactly. Basically, these plants grow in nitrogen deficient soil. So, in order to compensate that, they have to take nitrogen from the insect. Then there are certain species which are extinct, like Asiatic cheetah from India. And I think the day before yesterday, there was a news that government is now serious and they are going to reduce 50 African cheetah in India. तो एक एक करके वो 50 चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम कहेंगे री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, एंड इट विल कॉस्ट मोर देन यू कैन से 1000 करोड़. तो समटाइम ये होता है कि इवन वी मेक आवर प्रायोरिटीज so bad that eventually we are going to lose the money, the resource involved in bringing back the cheetah to India. And we already discussed that there is no need of reintroducing cheetah. It will cost money, it will cost displacement of people, and it will increase competition between other, you can say, large cats. We already have शेर एंड बाघ, एंड इनका एरिया ही काफी ज्यादा, यू कैन से, रिस्ट्रिक्टेड है. कि जब हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं तो इवेंचुअली हम क्या करते हैं, एक बड़े से एरिया, मान लो एक टाइगर का एरिया होता है कम से कम 40 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी ऑफ अ सिंगल मेल. ठीक है, फिर आप उसको 20 स्क्वायर किलोमीटर के टेरिटरी में रखते हो, तो यू इंक्रीज कंपटीशन अमंग द सेम स्पीसीज, और उसे इंटरब्रीडिंग होने का खतरा और बढ़ जाता है. ऊपर से आप एक और कैट को लेके आ रहे हो, फिर उसके लिए भी जगह चाहिए होगी, ओपन ग्रासलैंड चाहिए होगा. तो the resources which can be used for the native animal which are already facing the, you can say, threat of being endangered or being getting extinct will not get that much importance. Yes or no? Am I audible? Yes sir. Okay. आज सबके सब एकदम गहरी निद्रा में हो. सुबह सुबह उठ के पुशअप्स किया करो और ट्राई टू रन इनसाइड द हाउस, या फिर अपने भाई बहन को उठा के उसे फाइटिंग किया करो. तो इट विल बूस्ट योर, यू कैन से, ब्लड सर्कुलेशन, और इवेंचुअली आपको नींद नहीं आएगी. Pink headed duck, sometimes we say it's extinct, sometimes we say okay, we have seen one or two member of it in the wild. So this is critically endangered western flytrap, okay, which you can see in the Western Ghat. Most of the animal or plant in the Western Ghat are, you can say, endemic. And why they are facing the question of extinction? Because of, you can say, dam making, resort, mining, and tracking from humans. But my point, these are certain reasons which are pushing this particular plant into the category of critically endangered. Okay, before moving to the next slide, एक movie आई है, Pushpa. How many of you seen that movie or even the trailer? Yes sir, देखो. Yes sir, देखिए. Okay, तो आपने क्या सीखा उस मूवी से? What is the theme of that movie? इससे पता चल जाएगा कि how much concern you are about environment. सर बताओ. उसमें जंगलों को काट काट के चंदन के पेड़ों को. ओके, चलो एक चीज तो आपने पकड़ी, चंदन के पेड़. कौन से चंदन का पेड़ होता है? वो जो चंदन होता है वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर. Anyone else? किसी और ने कोशिश की
देखने के लिए कि मूवी क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ, और व्हाट इज द रोल ऑफ आलू अर्जुन. ही इज अ स्मगलर, वी ऑल नो. यस या नो? एंड स्मगल क्या करता है वो? चंदन की लकड़ी का, रेड सेंडर, और यू कैन से लाल चंदन, which is an endemic to आंध्र प्रदेश रीजन. एक दुनिया में पाए जाने वाला बहुत ही रेयर टाइप ऑफ फूड है, which has a lot of demand in European market. Got my point? और इसकी खेती केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है. खेती कह लो, कमर्शियल प्लांटेशन कह लो, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रीज को कट किया जाता है एंड फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. बट यस, इलीगल स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडलवुड is always there in the region of Andhra Pradesh. Got my point? So this is what I'm trying to say कि जब आप मूवी देखते हो तो अच्छे से देखा करो क्या दिखा रहा है मूवी, तो वहां से you can get something to learn. इससे पहले वीरप्पन था तो वो येलो सैंडलवुड को स्मगल करता था in the region of Karnataka and Maharashtra. Got my point? And it is very very much in demand in Europe and it's highly endemic. And because of that it fetch a lot of money to the smuggler, they cut it down in a large quantity. Got my point? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Then there is one more, you can say, rare, endangered and endemic plant, which you can see in the Pune district. Basically, it is also part of the Western Ghat. Maharashtra, Karnataka, they have beautiful landscape, which is basically the outcome of, you can say, Western Ghat. Besides being endemic and rare, it has also been declared as one of the world's 12 endangered species listed by IUCN, which means it is in the book of IUCN listed category of endangered plant. And when we declare any animal endangered, तो हम उसके एक्सपोर्ट पे और कलेक्शन पे भी रोक लगा देते हैं. बट हाँ, कितना वो फॉलो होता है, कितना इम्प्लीमेंट होता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. Like tiger, we all know tiger is endangered. Its number is very less, and we have to do everything in our capacity, basically the government, to stop it poaching. But eventually हम कुछ हद तक रोक लेते हैं, बट हाँ, थोड़ा बहुत पोचिंग होता है अभी भी टाइगर का. या हम बहुत नेशनल पार्क से बनाने लगते हैं, या बहुत से नेशनल पार्क्स को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने लगते हैं, तो उनका एरिया काफी ज्यादा सीमित होने लगता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं इन ब्रीडिंग के, which is not good for the whole population of that particular tiger in the region. It's one of the subspecies. दुनिया में 7 सब स्पीसीज हुआ करती थी टाइगर की, जिसमें से 5 बची हैं. एक मलेशियन और कैस्पियन जो सब स्पीसीज थी वो गायब हो चुकी है. और चाइनीज सब स्पीसीज को चाइना वालों ने इतना हंट किया है कि वाइल्ड में तो वो नहीं मिलता, बट या दे हैव आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, यू कैन से सेंटर्स वेयर दे ब्रीड and then kill the animal for their body part. In fact, China came up with a proposal to India that we should encourage the hunting or the poaching of tiger, and we should try to have artificial breeding center in which we are going to breed tiger. Then we will kill the tiger for its body part and we will sell it into the, you can say, international market. Basically, they were trying to say that we need to create a market for tiger body part, or we need to export them so that we can get good money. Now, it's not critically endangered, but still its number is very low. Asiatic lion ka, because they are highly endemic, they have a very small region of Gir जहाँ पे ये मिलते हैं आपको. अभी इनका रीलोकेशन किया गया है, एक जगह है जिसका नाम है कूनो
नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ताकि हमारे पास 2 डिफरेंट पॉपुलेशन रहे, एंड वी शुड अवॉइड इन ब्रीडिंग। इसीलिए एशियाटिक एलिफेंट, ये दुनिया में एकमात्र गधा है जो आपको वाइल्ड में देखने को मिलेगा, रन ऑफ कच्छ में। अब धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होते जा रही है, बिकॉज अब जो सिंस रन ऑफ कच्छ नॉट दैट यू कैन से बैड, they receive little rainfall, but due to global warming and increasing in temperature, we are witnessing fluctuating monsoon, and because of that they're not able to hold their population. Lion tail macaque, which you can see in southern India, especially in Silent Valley region. Now the best is how we are going to protect our biodiversity at individual level and as a whole, being a country, society or a state. आप क्या कर सकते हो अपने घर में? Try to think what habit you can change that it will impact the biodiversity in a good way. Good morning, wake up, smell the coffee बच्चों. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लांटेशन कर सकते हैं। ओके चलो चलो, सर आवाज इको कर रही है। एक्चुअली एक बच्चे का ना ऑन होगा माइक, इसीलिए इको कर रहा है। आप कर रहे हैं? आप नहीं कर रहा होगा। नो सर। व्हाट एल्स? ओके, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रिकवरी, वेरी गुड। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? Sir, use of cloth bags. वेरी गुड। इनफैक्ट आप अपना खुद का बना सकते हो घर में। यू हैव लॉट ऑफ यू कैन से ओल्ड क्लॉथ्स, साड़ी, सूट्स and other cotton related things. So using your creativity, I think you can make these types of bag, small, which can be very handful when you are going for a market visit. So these are small things which you can do at individual level. बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, आदतें होती हैं, अगर आप उनको चेंज करते हो तो एज अ होल उसका आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है हमें देखने को। जैसे उस बच्चे ने कहा कि अगर हम कॉटन बैग ही यूज करें तो इवेंचुअली वी आर गोइंग टू ban, or you can say we can reduce our dependency on single use plastic. Yes or no? And that will be very much useful in coming future. So broadly we have two types of conservation which you already know, ये आपने पढ़ा होगा। Even if I ask what is the meaning of in situ, you know. तो in situ का मतलब क्या होगा? बताओ भाविका, भाविका नाम है ना बच्ची का। हाँ, On site conservation. exactly, which means we have to protect the animal in its natural habitat. That is the best way to protect any group of animal or plant. ठीक है? और पहला हमारा जो कोशिश होता है वो यही होता है कि हम उसके नेचुरल हैबिटेट को बचा सकें, या उसके साथ हम उस एनिमल को बचा सकें। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब एनिमल की संख्या ज्यादा कम हो गई है और अगर हमने उसको वाइल्ड में छोड़ा तो देयर विल बी चांसेस दैट पर्टिकुलर एनिमल माइट गेट एक्सटिंक्ट। फिर हम एक्स सीटू का सहारा लेते हैं, व्हिच मींस out of the natural habitat
or by the help of artificial means. For example, जब आपको बुखार होता है या माइल्ड कोल्ड होता है, you try not to take any medicine. आप कोशिश करते हैं नेचुरली आप उसको ठीक कर लो, बट जब वो चीज थोड़ा सा एग्रोवेट कर जाती है, तब आप फिर मेडिसिन का सहारा लेते हो. इन द सेम वे वी डू with biodiversity conservation. So broadly you have like national parks, biosphere reserve, sacred groups. Sacred groups are like places in the wild which are very, you can say, religious to a particular group of tribal people. वहाँ एक बड़ा सा जंगल है और जंगल का ये हिस्सा यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोगों ने पवित्र घोषित कर दिया है या नो मैंस लैंड घोषित कर दिया है. मतलब यहाँ पे केवल पूजा पाठ होगा, ऑफरिंग दी जाएगी. इस एरिया से आप एक लीव्स को भी नहीं तोड़ सकते. So that region will be known as sacred. And these types of groups throughout India are very important for the survival of even say forest. And government of India इनको recognize भी करती है ताकि उसको गलती से भी हम टच ना करें. In XC2 you have all the artificial means, like even the planting of different you can say small sapling of plant inside your home is also part of XC2. Seed bank, gene bank, cryopreservation. What is the meaning of cryo? नाइट्रोजन -195. कभी देखा है आपने नाइट्रोजन? Have you seen nitrogen gas? आजकल तो बहुत कॉमन है बच्चों. आप किसी भी मॉल में जाओ तो आप देखोगे they are using nitrogen gas. हाँ. Then we have botanical gardens, herbarium, zoological parks. आपको पता है दिल्ली एनसीआर में भी एक बोटेनिकल गार्डन है. हाउ मेनी ऑफ यू नो? Have you ever tried to visit that area? किसी को try to put a pressure on your brain, on your nerve cell, then you will remember what I'm trying to say. एक मेट्रो स्टेशन का नाम है वो. Yes, sir. एग्जैक्ट में झंडा लाइन में आता है. हाँ, बेसिकली नोएडा वाला जो लाइन है उसमें बोटेनिकल गार्डन आता है. तभी आपने ध्यान नहीं दिया कि पूरे स्टेशन का नाम बोटेनिकल गार्डन क्यों है? बताओ, एनीवन ऑफ यू? कभी आपने थॉट नहीं दिया? अच्छा, यू आर साइंस स्टूडेंट, तो कभी आप सोचते नहीं हो कि इस पर्टिकुलर चीज का नाम यहाँ ऐसा क्यों है या ये पर्टिकुलर चीज ऐसी क्यों है? कभी भी नहीं सोचते आप लोग? बताओ. So basically you are not using your studies or you are not applying your knowledge in general. Yes or no? So that basically that area is planted by the government of India with different you can say plant saplings. उसमें आपको मेडिसिन प्लांट भी मिलेंगे, उसमें आपको हर्बल प्लांट्स भी मिलेंगे, small. Then you will have big trees also like neem and banyan tree. So when things will get normal, you can go and visit that area. It's a very beautiful place and it has a lot of greenery. And adjacent to that area is Okhla Bird Sanctuary. So in one visit, you can see both of them. Got my point? Good morning. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So why do we need protected areas?
हमें जरूरत ही क्यों इन एरियाज की? लाइक व्हाई डू वी नीड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व? What is the benefit of having all these types of things in a particular country? The point is, if we are not going to protect these areas in a legal way, then it will be very difficult for the animal or the plant to survive. So we have to provide them a legal status so that people know if we are going to do anything wrong in these protected area, then we might be prosecuted as per the law. So the United Nations decided that every country has to give 5% of its land under protected area. So in India now we have 5% of our land under protected area, which is a good thing. That means we have a dedicated 5% land in which there is no human intervention of commercial level. So protected areas are locations which receive protection because of their recognized natural, ecological and cultural values. There are several kinds of protected areas which vary by level of protection depending on the enabling laws of each country, which means the area and the degree of their protection varies from country to country, or the regulation of the international organization involved. It could include uh, marine protected area. It could be a transboundary area also. Like in India, we have a Hemis National Park, which is a transboundary national park between India and Tibet. But we are trying to protect that trans-Himalayan region also, which is between two countries. Got my point? Because there are certain animals which migrate between two countries, like snow leopard. It's a mysterious animal, and it has a range between India, Tibet, Nepal, Sikkim, Bhutan. So to protect that particular animal, we have to coordinate between the countries. So protected area also includes marine protected area, the boundary of which includes some area of ocean. Then we have transboundary protected areas that overlaps multiple countries, which remove the borders inside the area for conservation and economic purpose. But sometimes there are certain countries which are very hostile towards any policy of conservation, like China. China is also a tiger range country, so whenever we have a meeting of all those tiger range countries, China always give a very relaxing or very unattentive comment, which means they are not bothered about the population of tiger or even tiger. So basically, we need protected area for the biodiversity conservation. Now this number have increased. Latest you can search or you can Google. I think now we have more than 500 plus wildlife sanctuaries and more than 105 national parks and 18 biosphere reserves. ये नंबर भी बढ़ गया है, ये कांस्टेंट है. Unless we have conservation reserves, community reserves of a particular area. Tiger reserves have gone to 51. Elephant reserve we have 32. अच्छा, कितने लोग आपकी क्लास में कभी किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में गए हैं? कोई बच्चा कभी गया हो नेशनल पार्क गलती से? Anyone of you? No, sir. कोई भी नहीं गया नेशनल पार्क घूमने आपकी क्लास में? यस सर. बहुत बड़ी विडंबना है और विचित्र बात है ये आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए ही नहीं. मतलब आपकी गया हो सर, गया हो. गए हो आप? कहाँ पे गए थे बच्चे?
So Simbli Park Tiger Reserve. अच्छा, आप तो वहीं से हो ना, उड़ीसा से? सर Yes, मेरा होम टाउन वही है। ओके सर, इसका भी गए। अब दोनों जो आपने टाइगर रिजर्व का नाम दिया है ना, नाम लिया है, सॉरी, एक समय ऐसा आ गया था कि यहाँ पे टाइगर ऑलमोस्ट गायब होने वाले थे बिकॉज ऑफ पोचिंग। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, नेशनल पार्क बनाते तो जरूर है, बट इतना उसको कंस्ट्रक्टेड, क्या कह सकते हो आप, हिंदी में क्या कहेंगे, इतना तंग बना देते हैं एनिमल के लिए कि वो खुद ही बेचारा उसमें घुटने लगता है। तो आपने उस नेशनल पार्क में स्पॉट किया टाइगर को, दोनों, भावना एंड देवाशीष? नहीं सर। सो यू आर अनलकी, यू आर आल्सो वेरी अनलकी। अब ये दो चीज दर्शाता है, पहला कि आप बहुत अनलकी हो, दूसरा कि वहां पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम है। यस या नो? यस सर। यही हो सकता है। सो उसके कंपैरिजन में एलिफेंट्स ज्यादा थे। एग्जैक्टली, बिकॉज एलिफेंट्स में टेरिटोरियल फाइट होती है बट इतनी नहीं होती, बट टाइगर्स में जब टेरिटोरियल फाइट होती है तो बहुत फिरोसियस होती है, और उसमें एक को तो जाना ही पड़ता है इस दुनिया से। तो इट मींस द नंबर आर वेरी लो। So what is a national park? A national park is an area where the natural or historical object of national significance are protected along with the wildlife therein, in such manner and by such means as will leave them unimpaired for the enjoyment of future generation. So basically कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर। अब टाइगर एक नेशनल सिग्निफिकेंस का एनिमल है, क्यों है? बिकॉज वो आपका राष्ट्रीय पशु है। तो जब हम टाइगर को बचा रहे हैं तो साथ ही साथ हम उसके सारे आवास और जो उसका प्रे है उसको भी बचाएंगे। देन ओनली वी कैन सेव टाइगर। केवल टाइगर को बचाने से हम टाइगर नहीं बचा पाएंगे, तो इवेंचुअली आपको पूरे फॉरेस्ट को या पूरे रीजन को एज इट इज बचाना पड़ेगा। Such protected areas are created by central legislation, which means central government is the authority to declare any area as a national park and enjoy highest level of legal protection. They usually form the focal area of the project Tiger Reserve. So most of the national parks are Tiger Reserve, like Jim Corbett National Park, which is a Tiger Reserve. Jim Corbett में you can see tiger because वहाँ पे tiger density ज़्यादा है, and in Kaziranga also. The human activity is confined to management duties and control tourism, which means no commercial, no grazing, no you can say collection of forest product are allowed in national park. Even if they are allowed, they are just allowed in the buffer zone. Okay, we have a buffer zone, then we have a transit zone, then we have a core. Core में आपका animal रहता है जिसको हमें protect करना होता है. And the first zone is the buffer zone. यहाँ पे tourism activity, ठीक है, collection of woods or forest, minor forest product are allowed. But national parks में I think वो भी allow नहीं करते हो. अब इसका positive outcome तो ये हो गया कि we are trying to protect the whole area and the animal. What is the negative thing of a national park? Can anyone think of it? सोचो. Sir, can you please repeat your question? What could be the negative thing of a national park? Human clashes maybe, tribal लोगों के साथ especially. Exactly. Most of the national parks were made by displacing a large population of tribal people. And those people who were living with the animal in a very harmonious way. Never had a fight with tiger or any animal. ट्राइबल लोग हमेशा बहुत ही बैलेंस वे में नेचर के साथ रहते हैं, बट जब आप ड्यू टू यू कैन से योर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कल्चर और यू कैन से देयर बिहेवियर try to isolate them from their land or from their you can say forest, then things become very ugly and they might turn into poachers. तो ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का. What is a wildlife sanctuary?
A wildlife sanctuary is a place where some rare wild indigenous mammal, birds, reptile. Basically, the difference between national park and wildlife sanctuary is कि wildlife sanctuary में हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम पूरे एरिया को इंपॉर्टेंस देते हैं. And any other form of wildlife are found in good number and represent a region that needs protection together with the natural environment. So as a whole, we try to protect the whole forest area. And who is the authority? State. The state forest department creates such protected area. So when you will become IFS or when you will join Indian Forest Services, कोई आपकी क्लास में जो एस्पायरेंट है जिसका ड्रीम हो IFOS बनने का? Any one of you? है कोई बच्चा? No one. Very strange. कोई फॉरेस्ट ऑफिशियल नहीं बनना चाहता आपकी क्लास में? Not a single child. कोई भी नहीं है. अब ये ऑप्शंस में बस. हाँ, अभी दो चीज पॉइंट आउट करता है कि अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है. ठीक है, फर्स्ट वन. एंड सेकेंड, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. यही दो निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूं, है कि नहीं? Am I right or wrong? ये देखो, इनको इतनी क्लैरिटी है कि 10 बजे क्लास में आना है. Priyanka want to be an IPS officer. Okay, good. What about others? Mostly here are doctors. So you all want to be a doctor. मतलब you are preparing for NEET. Yes or no? Yes, I sir. don't know about others. Yes, I'm sir. talking myself. No, उसमें कोई बुराई नहीं है बच्चे. I think 25 years तक है, तो 25 साल तक आप दे सकते हो. What's wrong in that? And India is already facing a lot of shortage of doctors. I think per 10,000 people we have the lowest ratio of doctor in the developing nations also. और हम डेवलप से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते. So we need doctors. We need good doctors. You should try and keep trying. Apart from that, any what about others? लिखते हैं चैट बॉक्स में किसने IPS ऑफिसर. ओके, अच्छा दिव्या ने लिखा था रेड सैंडलवुड. गुड दिव्या. So chief wildlife warden is actually the main authority which monitors the human activity such as livestock grazing, collection of forest produce, tourism within the sanctuary percents, which means these types of activities are allowed in wildlife sanctuaries. फिर इन दोनों से ज्यादा यू कैन से ओपन चीज है बायोस्फीयर रिजर्व. इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती. इसमें हम एक पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं एंड वहां पे सारे स्टेक होल्डर मिल के काम करते हैं. साइंटिफिक कम्युनिटी, ट्राइबल पीपल, देन एजुकेशनल ट्रिप ऑफ स्टूडेंट. सो वी अलाउ एवरीथिंग एक्सेप्ट पोचिंग. एंड ओवरऑल वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व. और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा बना था 1980s में, आई थिंक 1986 में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो साइलेंट वैली वाला जो पूरा एरिया है तमिलनाडु केरला का, दैट फॉल्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड नीलगिरी हिल्स एंड द एरिया एडजेसेंट टू नीलगिरी इज क्वाइट ब्यूटीफुल. प्लस मैंने आपको दिखाया भी होगा वहां पे एक पर्टिकुलर ट्राइब रहती है विच इज वेरी प्रिमिटिव, टोरा ट्राइब. दिखाया था आप लोगों को? आई होप मैंने आपकी क्लास में दिखाया होगा. मे बी हो सकता है किसी और क्लास में. एनीवेज, तो एक प्रोग्राम है MAB बाय यूनेस्को, मैन एंड बायोस्फीयर. ठीक है, which comes under the category of UNESCO. तो इन्होंने पहली बार ये सोचा था कि क्यों ना हम कंजर्वेशन एक ऐसे तरीके से करें जिसमें सबकी भागीदारी हो.
और उससे लोग खुशी खुशी एनिमल को और अपने फॉरेस्ट को बचाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। Biosphere reserves are area of terrestrial and coastal ecosystem promoting solution to reconcile the conservation of biodiversity with its sustainable use. They are internationally recognized, nominated by national government, and remain under sovereign jurisdiction of state where they are located. Which means जो 18 biosphere रिजर्व हैं उनको यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और उसमें कुछ बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज का भी टैग मिला हुआ है। Got my point? Which means they are culturally also very important. Then comes tiger reserves. Tiger reserves are operated by state forestry department to ensure maintenance of viable population of tiger for the conservation purpose. Especially the Bengal tiger. इंडिया में जो species मिलती है उसका नाम है Bengal tiger. Not species, it's like subspecies. Okay, if I say which is more important, tiger और हनी बी, अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हनी बी। एंड व्हाई? व्हाई हनी बी? उसका प्रोडक्ट। ओके, उसका प्रोडक्ट इज लाइक हनी। अच्छा, एंड व्हाट एल्स? अगर आप जंगल में फंस जाओ और आपके पास वेपन हो और आपको भूख लगी हो तो आप किसको मारोगे? हनी बी को मारोगे या टाइगर को? Who will fetch your thirst of hunger? Obviously, but the tiger will give you more meat. तो टाइगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ना, है कि नहीं? Do you all agree with my statement? बताओ भावना, इशिता, इशिका, देवाशीष, आदित्य, दिव्या। टाइगर अगर वेजिटेरियन हुआ तो तब वो हाँ घास। बट सर्वाइवल की बात आती है तो और कुछ भी कर सकते हैं। हनी निकालना ज्यादा आसान होगा सर। हनी भी निकालना ज्यादा आसान होगा सर। अच्छा, भाई से आप नहीं पता है सर ऐसे कर सकते हैं कि फ्यूम्स जला के हनी बी को हटा सकते हैं उनके छत्तों से, आराम से वो ऑलरेडी प्री कुक्ड, मतलब कुक नहीं, मतलब उसको करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। And what if after you turn out to be sensitive, you can say the term known as can give an effect. सर आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज। यस सर। आपको बेटा नेटवर्क नहीं सर, हुई आवाज पे। I'm saying, what if after consuming the raw honey and you turn out to be very much sensitive towards the raw honey which contains a lot of pollen, which means you cannot consume raw honey as it is because उसके अंदर काफी ज़्यादा pollen होता है and a lot of very much sensitive towards different types of pollen grains. It can give you an left shock because of your heart symptom. सर बट देन रॉ को मीट समझते की भी नहीं। तो कोई पॉसिबिलिटी है ना कि हमको कोई डिजीज हो सकती है। Exactly, क्यों नहीं हो सकती? हनी बी को मारना ज्यादा आसान होता है टाइगर के मुकाबले। हमारे बिना भी सर हम उनको फ्यूम से दूर भगा सकते हैं। भावना फ्यूम्स भगाएगी ना दूर। Why you're सर आवाज कट रही है। हाँ बच्चे, I got your point. You can use fumes and you can make the honey bee more irritating and it can fly away. अभी भी आपके biological role को नहीं समझ पा रहे। What is the function of सर आवाज। Sir, your voice is breaking. we are Not fine, sir.
अभी ये दिव्या पांडे ने कहा कि दे हेल्प इन पॉलिनेशन, तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, हनी बी और टाइगर? So both are important. सर आ गई आवाज। So honey bee is more important. 80 to 90% of pollination of your food and fruit is done by honey or honey bee. तो अगर honey bee ना रहे तो आपका टाइगर गायब हो जाएगा. Even human will not able to survive. सर वो Pollination is very- एनिमेटेड मूवी थी ना बी करके, Okay, yes, we are. honey bees stop producing honey because उनको लगा humans उनको exploit कर रहे हैं and then Exactly. सारे flowers मर गए थे। Exactly. तो अभी आपने दिमाग लगाया ना, तो this is what I'm trying to make you people understand उस that. समय आवाज ब्रेक हो रही थी तो पॉइंट समझ नहीं आया। ओहो, मैंने बहुत पहले पूछा था which is more important, टाइगर और हनी बी. चलो कोई नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो इवेंचुअली आप समझ गए. Got my point? तो वो सिंगल हनी बी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर और in fact for the whole forest. Your grasses, your plant, everything depend on honey for pollination. So we need to maintain tiger for the scientific, economic, aesthetic, cultural and ecological value, and to preserve for all time area of biological importance as a national heritage for the benefit, education and enjoyment of the people. This is the last word, enjoyment. बाकी चीज का तो मुझे पता नहीं, बट हम टाइगर को इसलिए ज्यादा बचा रहे हैं, टाइगर हो या कोई और एनिमल. Enjoyment of the orangutan. Got my point? And these are certain national parks and wildlife sanctuaries, which you can see in the map also. This is your Hemis High Altitude National Park, which is a transboundary. Then there is one more, Manas National Park in Assam and Royal Manas National Park in Bhutan. वो दोनों भी आपस में शेयर करते हैं बाउंड्री. एंड हिमाचल प्रदेश में एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क विच इज अ यूनेस्को साइट आल्सो. कंचनजंगा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट which is a mixed world heritage site. It's a national park also, it's a beautiful cultural place also. This Lamjao is a floating national park जो मणिपुर में है. Then these are wildlife sanctuaries in India. This is Dachigam National Wildlife Sanctuary, where you can see red deer in Kashmir. In spite of having 51 national tiger reserve, we are still facing very, you can say, uncertain future of tiger. So there are certain dedicated, you can say, projects or measures which were taken by the government of India to protect a particular animal, like Deer Sanctuary Project for lion, tiger, musk deer, you all know, Kasturi Mrig, Project Hangul, that is like red deer जो अभी मैंने आपको बताया, and crocodile breeding center. ये हमने स्टार्ट किया था इन मिड 70s एंड 80s, क्योंकि इंडिया में एक टाइम क्या हुआ था, क्रोकोडाइल्स की बहुत मैसिव हंटिंग हुई फॉर लेदर. 1980s में इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ लेदर. तो इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल और हमने अच्छा खासा पॉपुलेशन मेंटेन किया क्रोकोडाइलियन का. एंड अब तो बहुत सारी कंट्रीज में फार्म्स होते हैं जिसमें वो क्रोकोडाइल्स को ब्रीड करते हैं और फिर उसके बाद उनको मारते हैं मीट के लिए
एंड लेदर के लिए, मतलब मान के चलो 600 से लेके 1000 किलो तक का क्रोकोडाइल वो आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं। तो किसी ने देखा है पानी में मगरमच्छ? यस सर। ओके, अभी रिसेंटली इंडिया में मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर क्या है? ये है मगरमच्छ जो लेटा हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। अब मैं आपको घड़ियाल दिखाता हूँ। तो मैं आपको पिक्टोरियल वे में दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। और ये रहा आपका घड़ियाल, दोनों का माउथ देखा आपने कितना डिफरेंस है? यस सर। ये जो घड़ा लाग एक स्ट्रक्चर होता है घड़ा टाइप, उसकी वजह से इसका नाम पड़ता है घड़ियाल, और एक लंबा सा स्नाउट होता है। और सर एक्चुअली गांव में सूस बोलते हैं, सूस क्या है? अब ये तो आपकी लोकल लैंग्वेज में मेरे को नहीं पता बच्चे, अब उसकी फोटो दिखाओगे तो मैं आपको बता, फोटो शेयर करना ग्रुप में। आम आदमी आम नदी में जो चले जाते हैं सूस ही रहते हैं, उसे सूस कहते हैं। ओके ओके सर, फोटो मिलेगा आपको दिखा देंगे। ओके, so there are certain, you can say, legislation through which we are trying to protect our animals or biodiversity, like Indian Wildlife Protection Act 1972, then Biological Diversity Act 2002. Then there are certain organizations and NGOs which are working for the biodiversity conservation, like CITE. CITE एक NGO है जो एनिमल के बॉडी पार्ट के ट्रेड को रोकता है, क्या आप कह सकते हो मैनेज करता है। The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. So basically इनके पास 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3, जिसमें वो लिस्टिंग करते हैं। तो 1 वाले जितने भी एनिमल हैं उनके बॉडी पार्ट में आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, इनफैक्ट उनका ट्रेड होगा ही नहीं। सेकंड वाले का कंट्रोल ट्रेड होगा, और जब भी पॉपुलेशन उनकी ड्विंडल करेगी ट्रेड बंद हो जाएगा। थर्ड वाले लिस्ट में आप एनिमल का ट्रेड कर सकते हो without any restriction. Then we have IUCN, Indian Wildlife Board, Wildlife और Worldwide Fund for Nature WWF, जिसका साइन होता है पांडा, ब्लैक पांडा, ये काफी फेमस है WWF। देन हमारे खुद का सोसाइटी है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था, एंड बेसिकली दिस इज डेडिकेटेड टू बर्ड्स। Then XC2 organizations, we have National Bureau of Plant Genetic Research, ये आपका यहीं पे है दिल्ली में, पूसा। National Bureau of Animal Genetic Research, National Facility for Plant Tissue Culture Repository. So these are 3 big institutes where we culture things in artificial way. For example, मान लो लास्ट पेयर बचा है किसी एनिमल का, तो हम क्या करते हैं, हम उसके एग और स्पर्म को स्टोर कर लेते हैं ताकि आगे चल के फिर उसको हम इन विट्रो वे में फर्टिलाइज कर सके और उसकी पॉपुलेशन को कोशिश कर सके मेंटेन करने की। गॉट माय पॉइंट? ऐसी इंडिया में एक सीड बैंक है लद्दाख में, सिंस लद्दाख इज अ कोल्डर रीजन, तो वहां पे वो सीड बैंक बनाना आसान था हमारे लिए, और उसको मेंटेन करती है इंडियन आर्मी विद द गवर्नमेंट। एंड उसमें इंडिया के सारे जितने भी वाइल्ड वैरायटीज के सीड और प्लांट हैं उनको कंजर्व करके रखा गया है कि बाई चांस इन फ्यूचर कभी कुछ हो जाता है तो उन सीड्स को यूज करके हम दोबारा एग्रीकल्चर कर सके। ऐसी एक वर्ल्ड सीड बैंक है, तो कल आप पता करके आओगे कि वर्ल्ड सीड बैंक कहाँ पे लोकेटेड है। यस या नो? ओके सर, नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चनिंग एंड क्वेरी राउंड, फिर विल स्टार्ट पॉल्यूशन। चलो बच्चों पूछो। आज बच्चे बहुत कम आए, ऐसा क्यों? इससे पहले आपकी क्लासेस नहीं थी क्या? सॉरी, इससे पहले तो संडे था। Okay, so you have any query regarding biodiversity?
बच्चों? Any query, any doubt? So when is it right to declare a species extinct? We have a notion that if its last individual is not being seen in the wild for last 50 years, then we declare that particular species as extinct from wild. 50 साल तक हम वेट करते हैं. अगर 50 साल में कभी वो देखने को ना मिले जंगल में, तब हम मान लेते हैं कि वो गायब हो चुका है. That means it's already been extinct. But अगर अभी कोई न्यूज आई थी recently, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था that some animal has been seen. Wait a second. हाँ, काफी एनिमल्स 200 साल बाद भी देखने को मिलते हैं. सर क्लाउडेड लेपर्ड था. वो तो बच्चा मिस्टीरियस है. हाँ, इट्स अ वेरी मिस्टीरियस एंड रेयर एनिमल. इट्स नॉट एक्सटिंक्ट. हाँ एक्सटिंक्ट, बट ऐसे ही कोई एनिमल दिख जाए फिर देन मतलब फिर क्या स्टेप्स लेते हैं? फिर हम पूरी कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल के प्लेस को फाइंड करने की, ताकि हम उसके पॉपुलेशन को दोबारा मेंटेन कर सकें. जो क्लाउडेड लेपर्ड वाला देखा ना आपने, वो बहुत ही यूनिक है. उसको वाइल्ड में स्पॉट कर पाना ही बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, मिस्टीरियस है. क्यों? क्योंकि जो उसका रेंज है वो ऐसे इलाकों में है जहां आप जा नहीं सकते. तो आप कैमरा ट्रैप ही लगाते हैं, या किसी पिक्चर क्लिक कर लियो, किसी वॉइस ने क्लिक कर लिया हो, किसी टेररिस्ट ने क्लिक किया हो और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दे, तो बात अलग है. Okay, sir. Any other doubt? No, sir. No one? तो क्या चाहते हो, हम आज ही स्टार्ट करें या कल स्टार्ट करें? कल मे बी क्लास ना हो पाए, बिकॉज आई विल गो टू द कॉलेज. तो हो सकता है मैं कॉलेज से ले लूं फर्स्ट क्लास. आई थिंक इट्स अ वेरी आई मीन सिंपल चैप्टर. ये आपने पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आप ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में. यस या नो? यस सर. आप तो बहुत लेट आए हो हसन. आप आए हो 9:40 पे या 45 पे. यस. कहाँ रह गए थे? यू वर स्लीपिंग? हाँ सर. कोई नहीं, विंटर्स का टाइम है, आई कैन अंडरस्टैंड. और ऊपर से संडे, तो 3-4 बजे तक तो बच्चे जगते ही जगते हैं, है कि नहीं? लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, आप सुबह उठ के अपने एरिया में जितने भी एनिमल या बर्ड्स आप स्पॉट करोगे, उनके पिक्स क्लिक करके सेंड करोगे ग्रुप में. लेट मी सी कि आप कितनी जल्दी उठते हो और कितने अच्छे तरीके से नेचर को स्पॉट करते हो, या मतलब कितना ज्यादा अपने सराउंडिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो. फिर सुबह सुबह क्या मिलेगा? यही तो सवाल है सबसे बड़ा. Sir, dogs and cats, whatever. कोशिश करके देखो. मिल जाएंगे, गाय मिलेगी, पक्षी मिलेंगे, बिल्ली मिल जाएगी. नहीं, इंसान भी मिलेगा, ऐसी सर बात अगर नहीं है. पुरानी पिक्चर है तो चलेगा. हाँ, विंटर्स के टाइम में यू कैन स्पॉट लॉट ऑफ बर्ड्स व्हेन इट्स लाइक 8 o'clock और 9 सर अब o'clock. तो वो कौन सी बर्ड होती है जो संक्रांति के टाइम आती है? आई हैव अ पिक्चर, आई शेयर. सारस, you will see सारस. नहीं सर, इट्स अ डिफरेंट बर्ड. सिर्फ संक्रांति के समय दिखती है. आई शेयर द पिक्चर, आई हैव सम. ओके, तो ग्रुप में शेयर करना. यस सर. But this is the best time when you will see a lot of migratory birds around your area, especially in Delhi. दिल्ली में आपको ग्रीन फुटेड पिजन देखने को मिल जाएगा अभी. एंड ओखला बर्ड सेंचुरी तो आप जा नहीं सकते बिकॉज वो हो सकता है बंद हो, बट स्टिल यू विल सी कॉमोरेंट, और समटाइम्स इफ यू आर वेरी लकी आइबिस देखने को मिल सकता है आपको. बाकी तो आप
एग्रिड देख सकते हो, हेरॉन देख सकते हो। ठीक है, अभी बारिश हुई है तो एयर क्वालिटी काफी अच्छा हो गया है, तो कहीं पे अगर पानी इकट्ठा हुआ होगा तो वहां पे आपको लैपविंग देखने को मिल सकता है। ट्राई टू सी, and those who are from like mountainous area or from even plain area where you have agriculture field, so in this season you can see Saras, and Saras is the largest plain in India, and Saras is also the state bird of UP, plus they are migratory, so you can try to spot those who are from UP. even in Delhi में भी आपको देखने को मिल जाएगा in pair, and they are always in pair. बेटा ये किंगफिशर है, जो नॉर्मल किंगफिशर होता है ये वो है भावना। यस सर। ये पाई किंगफिशर है, इट्स अ वेरी कॉमन वन, अभी आपको देखने को मिलेगा आपके आसपास। सर बट आसपास कोई तालाब तो है नहीं जो यहाँ पे दिखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, they even feed on small insect, caterpillars and garden lizards. एंड यूजुअली सर ये इसी टाइम दिखते हैं बस हमेशा से। तो ठंड के टाइम दे आर वेरी मच एक्टिव। हो सकता है पॉन्ड आपको ना बताओ, लेकिन आपकी विसिनिटी में वो काफी दूरी पे। सर पॉन्ड है पर मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब जहाँ भी देखे हैं वहां तो इतना लोकेलिटी में है नहीं। ओके, बाकी किसी ने स्पॉट किया है, नहीं किया तो करना। ट्राई टू सी द सराउंडिंग इन विच यू आर लिविंग, ट्राई टू कम आउट ऑफ योर हाउस मास्क लगा के, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विद इन 1 एरिया, 1 किलोमीटर ऑफ द एरिया विद इन द सोसाइटी, कि आपको इन्फेक्शन से भी बच के रहना है। तो आई हैव टेकन योर अटेंडेंस, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन टेक अ ब्रेक, स्लीप बिफोर द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज आपकी क्लास में बैक टू बैक होती है मेरे ख्याल से। यस या नो? यस सर। इसलिए कह रहा हूँ। तो चले एंड द क्लास। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके बस एक डाउट है। नो सर। हाँ देवाशीष, पूछो पूछो पूछो, देवाशीष को डाउट है, पूछो। सर लाइक अफ्रीका में जो व्हाइट हॉर्न डायनासोरस है उनको तो लाइक प्रोटेक्शन दी जाती है, पर्सनल सीक्रेट्स, लाइक 2 आर देम लेफ्ट फीमेल्स जो है। तो जो डीप सी क्रीचर्स होते हैं जैसे वकीटास है, उनकी पॉपुलेशन काफी कम है, तो उनको कैसे कंजर्व किया जाता है? लाइक देयर आर ओनली हार्डली 15 to 20 दे अज्यूम। उनको भी इन सीटू के सॉरी एक्स सीटू के थ्रू किया जाएगा। एक्चुअली सी क्रिएचर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट्स वेरी हार्ड टू मिमिक देयर नेचुरल सराउंडिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि उनको इतना इंटरनल प्रेशर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में दे पाना और मेंटेन कर पाना इज क्वाइट अ बिग टास्क। प्लस अब मैं कह सकता हूँ कि वी डिफरेंशिएट और वी डू पार्शियलिटी, कि जो लैंड मैमल्स हैं या लैंड एनिमल्स हैं हम उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इट इज इजी टू सेव देम इन कंपैरिजन टू द डीप सी क्रिएचर्स। गॉट माय पॉइंट? यस, हम ही करते हैं, इवन साइंटिफिक कम्युनिटी भी करती है। आप देखो टाइगर के पीछे कितना पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टाइगर 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 टाइगर, एंड उसके कंपैरिजन में किसी और एनिमल को अगर आप देखो तो इतना फोकस नहीं किया जाता। लाइक एम्फीबियंस, सैलामेंडर्स, न्यूएट्स और फ्रॉग। एक समय था कि बारिश होते ही आपको पीले कलर का फ्रॉग दिखता था, अब वो गायब हो चुके हैं, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। कोई नहीं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय।
you.